Okay, so good morning, everyone. Good morning. Okay, so let us start. Okay, see, we were discussing new module, traffic engineering. Okay, traffic engineering, and the topic was your traffic flow characteristics. It may be known as traffic flow characteristics or your traffic flow parameters. Okay. So, in our previous lecture, we have learned there are basically we can broadly classify these characteristics or the traffic flow parameters into two classifications. Okay, one was your macroscopic and another was your microscopic. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay. So, what was the macroscopic? Macroscopic was your parameters which are considered by taking traffic as a whole. Okay, so the parameters were volume, traffic volume or traffic flow, unit is vehicle per hour. Then this we have started. Okay, we have started this topic, and the second parameter is your speed, kilometer per hour, and traffic density, that is vehicle per kilometer. Okay, and the corresponding microscopic parameters are for volume. What is the corresponding microscopic parameter? Please remember this one. Okay, because while solving numericals we must know what are the corresponding microscopic parameter of the macroscopic parameter. Okay. So, for volume, it is headway. Here, since the unit is time, okay, and here, what is this? We are referring with respect to time. Volume means what? Vehicle per hour, okay. Number of the vehicle crossing a section in a highway during a given period of time, okay, in a given interval of time. That is the volume. Yes, ma'am. So, time is the factor, so your headway will be what? Since this is the corresponding microscopic parameter of this traffic volume, so unit will be second. Okay, and we can also we can also call it as the time headway. Okay, time headway. Now speed, its corresponding microscopic parameter is the travel time. Okay, and for density, its microscopic parameter is spacing, or this is called the uh, space headway. Okay, spacing or space headway. Okay, since here we are considering the number of vehicles with respect to distance. Okay, in a 1 kilometer stretch of road, what is the number of the vehicles? Okay, so here we are considering distance, so that's why the corresponding headway is known as the spacing or the space headway for the density. Okay, so वॉल्यूम के लिए है हेडवे, स्पीड के लिए ट्रैवल टाइम, डेंसिटी के लिए स्पेसिंग, ये याद रखना है. नाउ we have discussed what do you understand by the volume. Okay, what do you understand by the rate of flow? Okay, volume means in a given any given period of time, what is the number of the vehicle that has crossed a section. Okay, in any given period of time, that is the volume. And unit is what? That is vehicles per hour. Here unit is what? We have to convert that into 1 hour. We are considering that interval as 1 hour. Okay, and the rate of flow is what? If that time duration is less than an hour, then the volume is known as the rate of flow. Okay, Yes, same ma'am. we have given the example कि 15 minutes में 200 vehicles will cross the road, so its equivalent volume or equivalent hourly volume will be 800 vehicles per hour. And also we must consider that this rate of flow may not be equal to the total hourly volume. ये भी हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया. देखो ये है तुम्हारा टोटल hourly volume और इसका corresponding rate of flow is 400 मतलब 4000. That means if vehicle if vehicle if vehicle will
if vehicle if this much number of vehicle will cross a segment, okay, will cross a section in 15 minutes, then its corresponding rate of flow or its corresponding equivalent hourly volume will be 4000. that means 15 minutes में इतना जाएगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि एवरी 15 मिनट में 1000 व्हीकल्स ही आ रहा है, राइट, उसी रेट में आ रहा है, देन व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट आवरली, मतलब कि पर आवर में फिर कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, एक 15 मिनट में आ रहा है तुम्हारा 1000, नेक्स्ट 15 मिनट में भी आएगा 1000, टोटल ऐड कर दो कितना है 2000, राइट, थर्ड 15 मिनट में आएगा सिमिलरली 1000, टोटल कितना हुआ है 3000, ओके, एंड द फोर्थ 15 मिनट्स में भी, मतलब टोटल 15 मिनट्स रहता है 1 आवर में, तो नेक्स्ट 1 आवर नेक्स्ट 15 मिनट्स में भी 1000 आएगा, तो टोटल कितना आ रहा है 4 बार 1000 टाइम्स आ रहा है, सो व्हाट इज दिस, Yes, ma'am. 4000, okay, if this rate is constant then the equivalent hourly will be this much, but actually ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, एक्चुअली हम लोग का कभी कभी ज्यादा भी आ रहा है 1000 से, कभी कभी कम भी आ रहा है, ओके, सो for getting the actual hourly volume, what we have to do, every 15 minutes में कितना vehicles आएगा उसको add कर दो, this is the actual hourly volume, और इसका corresponding equivalent है 4000, इसका corresponding equivalent है 44000, ऐसे, okay, तो ये बोला गया है कि equivalent hourly rate of flow may not be equal to the hourly actual hourly flow, hourly volume, तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था, सॉरी पीएचएफ भी हम लोगों ने पढ़ लिया, व्हाट इज पीएचएफ, PHF basically it signifies the uniformity of the flow, कि तुम्हारा every 15 मिनट में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो PHF डिफाइन करेगा, ओके, तो कल का अगर हम रिवीजन करेंगे तो बोलो PHF का वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0.25 to 1, ये हम लोग को पता है, ओके, अब बोलो तो ज्यादा कंजेस्टेड एरिया, सॉरी ज्यादा कंजेस्टेड रोड में PHF का वैल्यू कितना होना चाहिए, टुवर्ड्स 0.25 होना चाहिए या 1 होना चाहिए PHF का वैल्यू, मतलब कि मोर, अगर पूरा यूनिफॉर्मली अगर ट्रैफिक आएगा देन व्हाट शुड बी द PHF वैल्यू, 1 और 0.25, 1. यस, राइट, वेरी गुड, ठीक है, मतलब कि ये वाला देखो एवरी 15 मिनट्स में सेम व्हीकल्स आएगा, तो हम लोग का PHF कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, टोटल आवरली वॉल्यूम इज 4000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इनटू, अब इनमें से जो भी मैक्सिमम, सब तो एक है तो कोई भी एक ले लो, यहाँ पे बिठा दो, बिठाने से तुम्हारा आएगा देखो 1, ओके, और इफ इट इज टुवर्ड्स 0.25, मतलब कि देखो एक ही, मतलब कोई भी 15 मिनट में एक सब का सब ट्रैफिक एक ही 15 मिनट में आ रहा है, राइट, so total hourly will be क्या, 0 plus 0 plus this plus 0 will give you 2000, so यहाँ पे 2000 होगा, डिवाइड बाय 4 इनटू, अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, चार में से मैक्सिमम व्हीकल्स दिस मच ओनली, सो यहाँ पे करो 0.5, ओके, टिल हियर वी हैव डन, ओके, नाउ अच्छा, this we were, all this will come under macroscopic parameter number 1 which is traffic volume, okay, अब तुम्हारा वॉल्यूम को भी बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि देखो एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, मतलब तुम ट्रैफिक काउंट करोगे, राइट, तुम सर्वे कर रहे हो, यू विल काउंट द ट्रैफिक, सो तो हमको ये क्या लेना है, एवरेज वैल्यू कंसीडर करना है, ऐसा नहीं है कि सपोज तुम थ्रू आउट द ईयर पूरा ट्रैफिक कलेक्ट किया, कितना गाड़ी क्रॉस कर रहा है उस सेक्शन को, थ्रू आउट द ईयर एवरी डे एवरी आवर तुम कलेक्ट किए हो, राइट, और पूरा 365 डेज तुम कलेक्ट किए हो, ठीक है, करके हमको क्या चाहिए, we need to convert all this data into the average value, right, तो यहाँ पर 4 तरीका है एवरेज करने का, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज, तुम कितना डेज का एवरेज कर रहे हो, टोटल ट्रैफिक तुमने 365 डेज का कलेक्ट कर दिया, सपोज कलेक्ट कर दिया, एवरी आवर एवरी डे एवरी मंथ सबका कुछ कलेक्ट कर दिया, ओके, अब उसको कैसे एवरेज करोगे, ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, सी यहाँ पे नाम से पता चलेगा, ओके, इसका AADD है, सो एवरेज, फर्स्ट का A इज एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, ओके, तो यहाँ से बोल सकते हो कि हमको कितना नंबर ऑफ डेज का एवरेज वैल्यू चाहिए इसमें, सपोज आज तुम डाटा कलेक्ट किया 10 व्हीकल, नेक्स्ट डे कलेक्ट किया 20 व्हीकल, नेक्स्ट डे कलेक्ट किया फिर से 10 व्हीकल, ठीक है, ऐसे करते करते तुमने पूरा ईयर कलेक्ट कर दिया, पूरा ईयर में कलेक्ट कर लिया, ओके, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है,
ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू है, किस चीज का एवरेज है, डेली ट्रैफिक का है, ओके। और किस बेसिस पे करना पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ डेज में करना पड़ेगा, एनुअल नंबर ऑफ डेज, मतलब एनुअल मतलब क्या है, पूरा ईयर का एवरेज डेली ट्रैफिक निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज दैट वी मस्ट कंसीडर, एक ईयर में कितना डे होता है, 365, राइट। सो दिस इज व्हाट द एवरेज डेली बोला है तो 24 आवर वॉल्यूम, ओके, एट अ गिवन लोकेशन ओवर अ फुल 365 डे ईयर, ओके, 365 डे इन अ ईयर। मतलब कि तुम आज कलेक्ट किया, परसों कलेक्ट किया, तरसों करते 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 सपोज तुम जनवरी 1 से लेकर Yes, ma'am. दिसंबर 31 तक डाटा कलेक्ट किए हो एवरी डे, ओके, 24 आवर्स पूरा एकदम डाटा कलेक्ट करे ना, सबको ऐड कर दो, जो भी डाटा सपोज आज 10 कल 20 ऐसे करते करते तुम ऐड कर दोगे पूरा, ठीक है। करके क्या करोगे, डिवाइड बाय 365 करोगे, ओके। सो दैट वैल्यू विल गिव यू AADD। तो देखो एवरेज भी कर रहे हैं हम लोग, राइट, पूरा ट्रैफिक को एवरेज कर दिया कि बिकॉज वी हैव डिवाइडेड दैट वैल्यू विद द नंबर ऑफ द डेज, हम कितना दिन डाटा कलेक्ट किया उतना नंबर ऑफ डेज हम लोग ने डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ पे एनुअल बोला है, इसमें 365 डेज होगा, और डेली ट्रैफिक मतलब 24 आवर वॉल्यूम हमको चाहिए, क्लियर है। अब इस हिसाब से बोलो कि ये वाला क्या होगा, एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक। इसमें ओवर हाउ मेनी डेज होना चाहिए, यहाँ पे जैसे ओवर 365 डेज मतलब पूरा ईयर, एनुअल है तो पूरा ईयर, ठीक है, एनुअल डेली पूरा ईयर का, तो पूरा ईयर में 365 डेज होता है, राइट। तो हम लोगों ने टोटल डाटा का सम अप करके 365 डेज से डिवाइड कर दिया, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एवरेज लेंगे फिर से, ठीक है। एनुअल मतलब थ्रू आउट द ईयर का ही डाटा हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन वीकडे ट्रैफिक ओनली, यहाँ पे डेली था मतलब कितना दिन होता है, 7 डेज होता है इन अ वीक, राइट। तो ये पूरा 7 दिन में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ओके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन सा डाटा वी विल कंसीडर, वी विल कंसीडर ओनली द वीकडेज ट्रैफिक। Yes, ma'am. वीकडेज ट्रैफिक मतलब वहां पे क्या जाएगा, क्या बात जाएगा उसमें, तुम्हारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वीकेंड्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 365 डेज में है क्या, तुम्हारा सब कुछ संडे मंडे सब कुछ है इसमें, राइट, एवरी मंथ का संडे मंडे सब कुछ है इसमें। लेकिन वीकडे में क्या हो जाएगा, तुम्हारा वीकडेज में यहाँ पे सिर्फ हमको मंडे टू फ्राइडे डेज के लिए 24 आवर वॉल्यूम कलेक्ट करना है, ओके। So this is the average 24 hour volume at a given location occurring on weekdays over a full 365 day year। मतलब कि in a year पूरा सब एक ईयर में जितना भी वीकडेज है उसका ट्रैफिक कलेक्ट करोगे, फिर एवरेज कर दोगे। एवरेज किससे करोगे, जितना डेटा तुम कलेक्ट किए हो, ओके। सो दैट इज कितना बोला है, अगर तुम 365 डेज से अगर सब संडे सैटरडे संडे को अगर तुम माइनस कर दोगे, पूरा थ्रू आउट द ईयर का सैटरडे संडे को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 260 डेज, ओके। एक ईयर में टोटल नंबर ऑफ वीकडेज आर 260, ओके। सो हम लोग सम कर देंगे, 260 डेज में जो डाटा कलेक्ट किए ऐड करके डिवाइड बाय 260 कर देना है। दिस विल गिव एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक। ये दोनों क्लियर है। अब वैसे ही देखो और आया क्या, अब एनुअल हट गया, देखो एनुअल हट गया, ये वाला क्या था, ये पूरा ईयर का हमको डाटा चाहिए था, ठीक है, पूरा ईयर का फुल वीकडेज वीकेंड सब ऐड करके इसमें डाटा चाहिए था, और इसमें से वीकडेज का डाटा चाहिए था इन ईयर, ओके। लेकिन इसमें क्या है, अब एनुअल टर्म हट गया, ओके, दैट इज एवरेज डेली ट्रैफिक। अब बोलेगा तुमको कि हम लोग डाटा कलेक्ट किए, सिर्फ 6 मंथ का डाटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, मतलब पूरा ईयर का कलेक्ट नहीं किया, मतलब जितना भी लेस देन अ ईयर पीरियड का हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया उसका तुम एवरेज कर दो, ठीक है। उसमें तुम्हारा वीकडेज भी है, वीकेंड भी है, सब है, दैट विल गिव यू एवरेज डेली ट्रैफिक। और वैसे वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली योर एवरेज वीकडे विल बी व्हाट, वीकडे ट्रैफिक विल बी कोई भी लेस देन ईयर का कोई भी पीरियड का डाटा तुम कलेक्ट करोगे, लेकिन ओनली इन वीकडेज, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी दिन तुमने डाटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का तुमने डाटा किया जिसमें तुमने संडे सैटरडे को नहीं किया, लेकिन मंडे टू फ्राइडे यू कलेक्टेड द डाटा, सबको ऐड कर दो, ठीक है।
3 मंथ में जितना भी नंबर ऑफ डेज होगा सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ डेज डाटा कलेक्ट किए थे वो कर दो. Okay, so this will give you Yes, ma'am. average weekday traffic. So these are the representation. ठीक है, ये हम लोग का बहुत सारे Yes, ma'am. प्रॉब्लम में ADTD तुमको पूछा जाएगा या पूछेगा कि AWT निकालो, राइट, या बोलेगा एवरेज डेली ट्रैफिक निकालो, राइट, या एवरेज वीकडे ट्रैफिक, ये सब निकालो. और यही सब ट्रैफिक तुम लोग को कहाँ पे यूज हो रहा है, एनी आइडिया? ये जो ट्रैफिक तुम लोग काउंट कर रहे हो कहाँ पे आ रहा है, ये सब बोलो तो कहाँ पे यूज कर रहे हो, बोलो. ये सब डाटा कलेक्ट करके अल्टीमेटली कहाँ पे तुमने ये सब देखा होगा, ट्रैफिक काउंट कहाँ पे देखा है, कौन सा चैप्टर में देखा है, कहाँ पे यूज किया हम लोगों ने? पेवमेंट डिजाइन में यूज नहीं किया हम लोगों ने. पेवमेंट डिजाइन में वहां Yes, पे ma'am. कैपिटल ए वैल्यू, पी वैल्यू जो था, राइट, Payment design. तो वहां Yes, पे ma'am. हम लोग का ये सब काउंट यूज हो रहा है कि कितना ट्रैफिक, प्रेजेंट ट्रैफिक कितना है, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक कितना है, कहाँ पे कहाँ से मिल रहा है, यही सब से मिल रहा है. ओके, सो देखो दिस इज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो. ये देखो मंथ दिया है पूरा 12 मंथ, ठीक है, जनवरी से दिसंबर. नंबर ऑफ वीक डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ है, देखो जनवरी में 31 है, फरवरी 28 है, मार्च 31, ऐसा करके पूरा, मतलब इसमें सैटरडे संडे सब इंक्लूडेड है. ओके, अब इसमें सैटरडे संडे को निकाल दो, जनवरी में पूरा सैटरडे संडे जितना भी सैटरडे संडे है निकाल दो, वी विल गेट नंबर ऑफ वीक डेज इन अ मंथ. देखो 31 से हम लोगों ने सपोज 8 सैटरडे संडे था, राइट, सैटरडे संडे मिलाकर 8 डेज हुआ. सो 8 को सॉरी यहाँ पे कितना है, 9 डेज. ओके, 9 डेज हो गए तो 9 डेज को माइनस कर दो, देखो 22 आ रहा है. ओके, so this is what, these are the total number of weekdays in January, this is total number of weekdays in February. मतलब सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है और इसमें क्या है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड है. ओके, सो टोटल डेज कितना हो रहा है, देखो इन ईयर 365 ही हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 260 हो रहा है. सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ वीकडेज इन अ ईयर. ओके, अब देखो इन मंथ ऑफ जनवरी टोटल मंथली वॉल्यूम ये वाला है, मतलब जनवरी में टोटल मंथली वॉल्यूम ये है, मतलब कि कितना डेज का डाटा है, तो कितना डेज का ट्रैफिक काउंट है, कितना दिन हम लोगों ने सर्वे करके ये डाटा कलेक्ट किया है, बोलो. हेलो, आचो कि तुमरा, हेलो, Yes, ma'am. बोलो. ये जो 4,25,000 जो है ये वाला डाटा और ये जो नंबर ऑफ ट्रैफिक काउंट्स, राइट, कितना दिन का डाटा है ये वाला, एक दिन का लग रहा है ये वाला 31. दिस इज व्हाट मंथली वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या बोले थे, नंबर ऑफ Yes. व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन, राइट. सो ये है तुम्हारा मंथली वॉल्यूम. ओके, मतलब कि 31 डेज में इतना ट्रैफिक हम लोगों को मिला है. सिमिलरली 28 डेज में इतना ट्रैफिक मिला है, राइट, मंथली, मतलब जनवरी मंथ का ये, फरवरी मंथ का ये है. अब ये वाला क्या है, दिस इज द टोटल वीकडे वॉल्यूम, मतलब ये वाला है तुम्हारा 22 डेज में जो डाटा कलेक्ट किया था कितना है, इतना है. ठीक है, फरवरी में कितना वीकडेज है, 20 वीकडेज, उसमें अगर तुम 20 दिन डाटा जो कलेक्ट किया उसको सम अप कर दोगे, सो वी आर गेटिंग दिस मेनी व्हीकल्स. ओके, बोलो यहाँ से अगर इफ वी एड अप दिस वन, ओके, तो ये सबको ऐड कर दो, मतलब जनवरी मंथ में इतना व्हीकल आया, फरवरी मंथ में इतना व्हीकल आया, सब ऐड कर दो टिल दिसंबर. ये जो डाटा मिल रहा है हमको ये क्या है, कितना डेज के लिए है ये वाला डाटा, फिर बोलो ये कितना डेज के लिए होगा, 365 15, 365 हाँ 365, राइट, क्योंकि ये पूरा Yes, ma'am. फुल मंथ में जितना ट्रैफिक है, राइट, फुल मंथ मतलब 31 डेज का, ये फुल मंथ मतलब 28 डेज, फुल मंथ 31 डेज का, तो टोटल कितना डेज है, 365 है, तो ऑब्वियसली दिस डाटा इज फॉर करेस्पॉन्डिंग टू 365. और इस वीकडे को अगर सम कर दोगे तो ये जो डाटा मिल रहा है दैट इज फॉर 260. ठीक है, अब देखो एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, हम लोग को क्या चाहिए, एनुअल डाटा चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए और डेली मतलब ये वाला
डिवाइडेड बाय दिस करना है हमको, डेली एवरेज चाहिए, ठीक है, डेली ट्रैफिक एवरेज डेली ट्रैफिक चाहिए, लेकिन एनुअली, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 365 डेज में इतना आएगा, तो वन डे में कितना आएगा एवरेज करो, तो दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू AADT, राइट। अब ये है तुम्हारा वीक डेज ट्रैफिक, ठीक है, ये है 260 डेज में इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर एक दिन में कितना आएगा एवरेज, कितना आएगा, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू वीक ट्रैफिक, मतलब वीक डे ट्रैफिक, एवरेज एनुअल वीक डे ट्रैफिक, ओके। अब ये सब जो है, ये सब कैलकुलेट करके ये AWT ADT ये लोग निकाल दिया है, ओके। ये वैल्यू कैसे आएगा बोलो तो, ये जो 9455 आ रहा है कैसे आ रहा है, AWT सॉरी ये बोला ADT एवरेज डेली ट्रैफिक, ये 13710 कैसे आएगा बोलो तो, ये जो 1370710 ये जो वैल्यू आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला वैल्यू कहाँ से आ रहा है, एनीवन? एवरेज डेली ट्रैफिक क्या बोले थे हम, ये मंथ जनवरी मंथ का एवरेज डेली ट्रैफिक है इतना, मतलब क्या है एवरेज डेली ट्रैफिक कितना होगा, जनवरी मंथ में कितना ट्रैफिक आ रहा है टोटल डेली, अगर हम डेली मेजर करेंगे जनवरी मंथ का, अगर डेली ट्रैफिक काउंट करेंगे तो टोटल ट्रैफिक कितना आ रहा है, बोलो। In a month of January, what is the total number of vehicles coming या collected Delhi? दिल्ली अगर तुम जनवरी मंथ में डेली डाटा कलेक्ट करोगे, कितना टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स तुमको मिलेगा, ये क्या है, ये क्या था, इसका मतलब क्या है 42500, ये क्या है, मंथली ये है इन अ मंथ ऑफ जनवरी, अगर तुम डेली सर्वे करोगे, डेली ट्रैफिक काउंट करोगे, तो ये आएगा पूरा मिलाकर, ठीक है, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज करने के लिए क्या करेंगे हम, ये डेली ट्रैफिक है, मतलब सैटरडे संडे मंडे तुम हर दिन ट्रैफिक काउंट कर रहे हो, यहाँ पे संडे मंडे कुछ मिस नहीं जा रहा है, हर दिन यहाँ पे काउंट करके टोटल तुमको इतना मिल रहा है, मतलब 31 डेज तुमने डाटा कलेक्ट किया, इतना ट्रैफिक मिल रहा है। सो व्हाट इज द एवरेज डेली ट्रैफिक देन, डेली एवरेज ऑन एवरेज कितना ट्रैफिक आएगा, ऑब्वियसली दिस 42500 डिवाइडेड बाय 31, ओके, विल गिव यू दिस वैल्यू, कैलकुलेट कर सकते तुम लोग देखना, ओके। और ये वाला वैल्यू कहाँ से आ रहा है बोलो, ये वाला तो आ रहा है तुमको 42500 डिवाइड बाय 31, ठीक है, इक्वल्स टू 13710, ये 9455 कहाँ से आ रहा है बोलो, दिस इज व्हाट एवरेज वीक डे ट्रैफिक, वीक डे का एवरेज करना है, वीक डे ट्रैफिक का एवरेज करना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो कैसे मिलेगा ये वाला, how we will obtain this value, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बोलो तो, बोलो ये 94500 कहाँ से आ रहा है, इसको ये जो एवरेज डेली ट्रैफिक निकालने के लिए हमने क्या किया, मंथली जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ मंथ 31 डेज में कितना व्हीकल आया डिवाइडेड बाय 31 कर दिया, तो आप ये वाला आ रहा है, क्योंकि ये वाला वीक डेज ट्रैफिक, सॉरी ये वाला था डेली ट्रैफिक, राइट, डेली तुम काउंट कर रहे हो, ठीक है। अब ये वाला क्या है, ये वाला सिर्फ तुम वीक डेज में काउंट किए थे, मतलब इसमें सैटरडे संडे सब इंक्लूडेड था, अब इसमें सैटरडे संडे माइनस करके तो सैटरडे संडे तुमने सर्वे नहीं किया, ठीक है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तुमने सर्वे किया, ठीक है। तो टोटल वीक कितना होता है जनवरी में, सपोज 4 वीक होता है, तो 4 वीक में तुम पूरा सैटरडे संडे को नहीं किया, राइट, 4 वीक का जितना भी सैटरडे संडे था तुमने डाटा नहीं कलेक्ट किया, बाकी दिन कलेक्ट किया, तो सम अप कर दिया, ये वाला आ रहा है, मतलब दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज वीक डे ट्रैफिक, राइट। वीक डे ट्रैफिक है तुम्हारा कितना दिन के लिए तुम कलेक्ट किए थे डाटा, 22 डेज के लिए, राइट। अब इसका एवरेज वीक डे ट्रैफिक कितना होगा फिर,
ऑब्वियसली दिस डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ डेज तुमने डाटा कलेक्ट किया, ये वीक डे में किया, एंड दिस इज द नंबर ऑफ वीक डेज. ओके, so this divided by this will give you this one, sorry this one 94500 ओके. सो ऐसे करके ये वाला आ गया, मतलब ये वीक डेज का क्या आ रहा है, वीक डे ट्रैफिक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक डेज. ओके, और एडीटी आ रहा है कितना, ये वाला मंथली जो है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मंथ, कितना टोटल नंबर ऑफ डेज है इतना मंथ, इज गिविंग यू दिस वैल्यू. ओके, और इसका सम डिवाइडेड बाय 365 विल गिव यू एएडीटी, एंड इसका सम डिवाइडेड बाय 260 विल गिव यू एएडब्ल्यूटी. क्योंकि ये एनुअली हम लोग करते हैं, इसलिए सब डाटा हम लोगों ने पूरा मंथ का ही हम लोगों ने डाटा को ऐड कर दिया. फिर पूरा मंथ में कितना वीक डेज था, सॉरी कितना डेली ट्रैफिक, कितना नंबर ऑफ डेज था, दोनों को डिवाइड कर दो, वी आर गेटिंग डेली ट्रैफिक, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, और ये है तुम्हारा टोटल वीक डे ट्रैफिक, और ये टोटल नंबर ऑफ वीक डेज एनुअली. ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू दिस वन. ओके, तो फॉर्मूला तो हमको पता है, वॉल्यूम पर आवर में होता है ये आवरली वॉल्यूम, राइट. और कभी कभी इसको डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम भी हमको रेफर करना पड़ता है, जिसका ये फॉर्मूला है. ओके, ये देखो यहाँ पे यूज हो रहा है एएडीटी. ओके, एंड ए इज द प्रोपोर्शन ऑफ एडीटी दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द डिजाइन आवर. ओके, and D is what proportion of peak hour traffic traveling in the peak direction. अब यहाँ पे peak direction भी हमको देखना है, तो peak hour भी चाहिए था और peak direction भी चाहिए, एक फैक्टर चाहिए, राइट. मतलब दोनों ही डायरेक्शन में सपोज एक होता है कि सपोज तुम बजबज से बीबीआईटी आ रहे हो, ठीक है, और बीबीआईटी से बजबज जा रहे हो, 10 बजे देखना कहाँ पे पीक आवर किस डायरेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है. ऑब्वियसली फ्रॉम मॉर्निंग में होगा तुम्हारा बजबज स्टेशन से बीबीआईटी, राइट, दैट इज द पीक डायरेक्शन. ठीक है, और इवनिंग में क्या हो जाएगा, 5 बजे के बाद क्या हो रहा है, बजबज से सब ऑटो जा रहा है, सब बीबीआईटी से सब ऑटो जा रहा है बजबज स्टेशन की तरफ. डायरेक्शन विल बी फ्रॉम बीबीआईटी टू बजबज, तब उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा. तो हमको पीक आवर का डायरेक्शन भी देखना है कि उस पीक डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक जा रहा है. ओके, प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन जा रहा है, अगर टोटल 100 व्हीकल्स है उसमें से कितना प्रोपोर्शन तुम्हारा उस डायरेक्शन में, मतलब पीक डायरेक्शन में जा रहा है. दैट इज द डी. नाउ योर सेकंड पैरामीटर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, ये फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट, वॉल्यूम कंप्लीट. ओके, नाउ सेकंड पैरामीटर वाज योर स्पीड. तो स्पीड का तो फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम है, राइट. ये अब इसमें आता है तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड. अब तुमको यहाँ पे स्पीड पूछा गया है, तो जनरली वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड. उसमें से जो इंपॉर्टेंट है जो टर्म, दैट इज योर एवरेज. दीज आर द एवरेज स्पीड. ओके, क्यों हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं, राइट. तो मैक्रोस्कोपिक के लिए वी आर कंसीडरिंग ट्रैफिक एज अ होल, तो हम सबको एवरेज करेंगे, सब व्हीकल्स का एवरेज स्पीड लेना पड़ेगा हमको, राइट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जो इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड. ओके, इसको टीएमएस एसएमएस हम लोग रेफर कर सकते हैं. अब आते हैं कि इसके फॉर्मूलाज में. मेनली टाइम मीन स्पीड क्या है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, whereas space means speed है with respect to space. मतलब कि तुम से फॉर एग्जांपल एक सेक्शन ले लेते हो. ओके, सपोज ये तुम्हारा बीबीआईटी रास्ता है, वो है. ओके, तुमने यहाँ पे एक स्केच, मतलब क्या बोलते हैं, चॉक से लाइन ड्रॉ कर दिया है उस रास्ते पर. ये टॉप व्यू है. ओके, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो, तुम रास्ता को यहाँ पे कर दिया, यू आर स्टैंडिंग हियर. ओके, अब तुम क्या करोगे कि इस लाइन को जितना भी व्हीकल क्रॉस कर रहा है, ठीक, इसका तुम क्या लोगे, सर्वे करके स्पीड. जो रेडियल गन बोलो, स्पीड गन बोलो, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर सकता है इसका स्पीड डायरेक्टली. कुछ नहीं, एक गन टाइप का होता है, उस पर तुम फोकस करोगे, जिस गाड़ी जो गाड़ी आ रहा है उस पर तुम फोकस करोगे. ठीक है, फोकस करके उस पर शूट करोगे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके तुम्हारा डिस्प्ले में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करे उसको डिस्प्ले में उसका स्पीड आ जाएगा. ओके, तो सपोज ये जो फर्स्ट व्हीकल गया, ठीक है, इसका स्पीड तुम ले लिए, सपोज दैट इज v1. ठीक है, सेकेंड व्हीकल भी अब जब जाएगा, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को काउंट करेगा, सपोज उसका स्पीड है सपोज v2. ठीक है, ऐसा करते करते तुमने टाइम लिया सपोज 12 बजे, दोपहर का 12 बजे से 1 बजे तक. ओके, यू कलेक्टेड द डाटा, मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम कितना है, 1 आवर.
1 आवर में यहाँ ये सेक्शन से जितना भी गाड़ी क्रॉस करेगा उन सबका स्पीड तुम ले लोगे, ठीक है, देन यू विल डू एवरेज। ठीक है, तो वो इस सेक्शन से 12 बज के 1 बजे तक तुम्हारा 10 टू व्हीकल क्रॉस किया, तो 10 टू व्हीकल का स्पीड तुम कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करके क्या करोगे, एवरेज सम एवरेज कर देना है, ठीक है, 10 टू व्हीकल का स्पीड को हमको एवरेज कर देना है। इसलिए ये फॉर्मूला देखो, v सफिक्स i by n, n इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्व व्हीकल। सपोज हमने बोला कि 1 घंटे में तुम्हारा कितना नंबर ऑफ व्हीकल आया, तो n इज 10, ओके। एवरेज करना है मतलब क्या है, पहले सबको सम कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स करना है, राइट। 10 टू व्हीकल आए तो 10 टू व्हीकल का वेलोसिटी ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10, ओके। दिस इज योर TMS एंड वी नो स्पीड का और एक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम हमको पता है, ओके। सो यहाँ से भी तुम्हारा TMS का ये वाला आएगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का क्या कांस्टेंट है, दिस सेगमेंट इज कांस्टेंट, ओके। ये वाला जो सेक्शन है ये कांस्टेंट है, मतलब इसी सेक्शन को क्रॉस करना है सबको, लेकिन यहाँ पे क्या वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम, राइट, मतलब कि 1 घंटा हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन लिया है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 आवर व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग दिस सेक्शन, उन लोग का एवरेज स्पीड विल गिव यू टाइम मीन स्पीड। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या है, ओवर द टाइम हम लोग ले रहे हैं, ओके, स्पीड का एवरेज। अब दूसरा क्या है, ओवर द स्पेस हम लोग जो स्पीड लेंगे दैट इज योर स्पेस मीन स्पीड, ओवर द स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्शन को फिक्स कर दिया था, टाइम को हम लोग ओवर द टाइम 1 घंटे का डाटा कलेक्ट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो स्पेस हम लोगों ने ये जो फिक्स कर दिया इन द सेंस हमने एक कंसीडर कर दिया कि एक ये सपोज ये वाला है तुम्हारा BBIT के सामने वाला गेट, सामने वाला जो रास्ता है हम 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर ओवर द स्पेस, हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया, ओके। सपोज दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस सेगमेंट इज व्हाट, D, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा BBIT के सामने वाला गेट से लेकर तुमने पेट्रोल पंप में जो है जा रहा है वहां तक तुमने एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, ओके, एक सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। सो इन दैट सेक्शन, ठीक है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि सपोज एकदम 12 बजे, ठीक है, एकदम दोपहर का 12 बजे तुमने ऐसा, यहाँ पे सपोज वीडियो फोटोग्राफी, यहाँ से तुम लोग क्या जा रहा है, यहाँ से वीडियो फोटोग्राफी हो रहा है, ओके। तो तुमने वीडियोग्राफ ले लिया, ओके, तुमने ये वाला भी लाइन भी सेगमेंट भी तुमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब तो लैब में जाके वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब देख रहे हो कि यहाँ से तुम्हारा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटर कर रहा है, राइट, उस तरफ से आ रहा है व्हीकल्स, राइट। तो वीडियो में दिखाई रहा है, डिस्प्ले तुम्हारा वीडियो में तुमने वैसा तुमको दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, ठीक है। तो सपोज पॉज किया था एट द टाइम स्टैम्प ऑफ 12 PM, मतलब 12 में तुमने ये वीडियो को पॉज कर दिया। तो जब पॉज किया एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके, जब पॉज किया तो कितना सारा व्हीकल एट दैट सेम टाइम, मतलब 12 बजे ही कितना सारा व्हीकल इस सेगमेंट के अंदर रहा। सपोज ये 3 ठो व्हीकल इस सेगमेंट के अंदर था तब, ओके, इस सेगमेंट का डिस्टेंस कितना है, D। तो ये 3 ठो व्हीकल तब 12 बजे इसके अंदर सेगमेंट के अंदर था, ठीक है। सो ओवर द स्पेस कितना सारा व्हीकल है, यहाँ पे 3 ठो व्हीकल है, ठीक है। एंड इन लोग का हमको एवरेज स्पीड चाहिए, मतलब इन लोग का भी सपोज दिस इज आल्सो V1, दिस इज V2, इनका स्पीड हमको पता है, सपोज V2 V, ओके, V1 V2 V3 इन लोग का स्पीड है। अब एवरेज निकालो, जो वैल्यू आएगा, मतलब V1 plus V2 plus V3 divided by 3 will give you space mean speed, ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे एट इंस्टेंट ऑफ सेक्शन ले रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना सारा व्हीकल क्रॉस करेगा इन अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन सब का एवरेज दैट विल गिव यू TMS। एंड SMS इज व्हाट, कितना सारा व्हीकल विल बी क्या बोलते हैं, रहेगा ओवर अ गिवन स्पेस, और गिवन स्पेस कितना सारा व्हीकल आएगा एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सबका एवरेज स्पीड विल गिव यू SMS, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज ओवर टाइम, दिस इज ओवर स्पेस।
तो यहाँ पे टाइम है 12 बजे से 1 बजे तक कितना क्रॉस करेगा उसका एवरेज लो, और यहाँ पे है तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्टेंस में इतना स्पेस में कितना सारा व्हीकल एंटर किया एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तब उन लोग का स्पीड का एवरेज विल गिव यू एसएमएस। नाउ कम्स टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो ये वाला कैसे आ रहा है। अब V1 हमको कैसे निकलेगा, ठीक है, तो V1 के लिए क्या चाहिए, सपोज ये V1, this V1 cross this segment at T1, ओके, अगेन ये वाला V1 एंटर किया, सपोज V1 ये वाला फर्स्ट व्हीकल जब यहाँ पे था, जब यहाँ पे क्रॉस किया तब टाइम था T1, ओके, और जब ये वाला व्हीकल यहाँ पे क्रॉस करेगा तब टाइम था तुम्हारा T2, ओके। So what is the time taken by this vehicle to cover this distance of D? Obviously T2 minus T1, ठीक है ना, T2 minus T1 है, right? So we know the time, we know the distance, so we can easily calculate the speed of individual vehicle. वैसे V2 का भी तुम लोग वैसे करो, जब ये V2 ये वाला सेगमेंट क्रॉस करेगा तब का टाइम नोट डाउन करो, जब ये वाला क्रॉस करेगा तब का टाइम नोट डाउन करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस तरफ से आ रहा है, मतलब पहले ये वाला क्रॉस करेगा फिर उसके कुछ देर बाद ये वाला क्रॉस करेगा, तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, वो हम लोग को इजीली पता चल जाएगा, ओके। सो डिस्टेंस बाय टाइम विल गिव यू द स्पीड ऑफ दिस व्हीकल। सिमिलरली इसका भी स्पीड निकाल लो, तो यहीं पर ये वाला दिया गया है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ठीक है, तो ये वाला व्हीकल भी डी डिस्टेंस ही कर रहा है, ये वाला व्हीकल भी डी डिस्टेंस ही कर रहा है, ये वाला व्हीकल भी डी डिस्टेंस ही कर रहा है। से फॉर एग्जांपल ये है 3 व्हीकल है, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 व्हीकल ही है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस 3 व्हीकल्स। एक है अनिमेष, पीछे है अंकुश, पीछे है रामदास, राइट। अनिमेष ने डी डिस्टेंस कवर किया, अंकुश ने भी डी डिस्टेंस कवर किया, राका ने भी डी डिस्टेंस कवर किया, तो तीनों ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 9, 3 करके तो 9 होगा। 3D, राइट, 3D डिस्टेंस टोटल कवर किया, राइट। यस मैम। अब अनिमेष ने टाइम लिया सपोज T1, ठीक है, अनिमेष ने टाइम लिया T1 ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, अंकुश ने भी टाइम, अंकुश ने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया सपोज T2, राका ने और ज्यादा टाइम ले लिया सपोज 3, मतलब अलग अलग टाइम लिया है कवर करने के लिए, ठीक है। अनिमेष ने सपोज T1 टाइम लिया, अंकुश ने भी T2 लिया और राका ने T3 लिया, राइट। तो नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस D 3 टाइम्स। यस मैम। T1 प्लस T2 प्लस T3 हम लोग बोल सकते हैं ना, T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट, राइट, मतलब कि ये तो टोटल डिस्टेंस क्या है, D है, टोटल डिस्टेंस है 3D। यहाँ पे एग्जांपल है 3 व्हीकल इसलिए 3D आ रहा है, राइट, नहीं तो ये समेशन होता जाएगा टिल ND, ओके। सो ये total distance covered by 3 people is D plus D plus D, and the time taken, total time taken to cover this distance by individual is what, T1 T2 T3, so total time will be T1 plus T2 plus T3, right। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ व्हीकल्स होता तो क्या होता, ये ND हो जाता इधर, ओके, और नीचे क्या होता, समेशन हो जाता, ओके, समेशन ऑफ TI where I is equals to 1 to n, तो यही वाला टर्म आ रहा है, देखो, ठीक है, यहीं से वाला टर्म आ रहा है, ओके। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए D को नीचे भेज दिया, मतलब TI के नीचे आएगा, देखो TI के नीचे आ गया, अब D by T is what, V, अब ये उल्टा आ रहा है तो इसलिए V नीचे आ रहा है, वेलोसिटी नीचे आ रहा है, ओके। सो डिस्टेंस बाय टाइम इज योर स्पीड, लेकिन सिंस डिस्टेंस इज न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो V भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये है तुम्हारा TMS का फॉर्मूला एंड दिस इज द SMS का फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस देखो, एक में VI ऊपर है, एक में VI तो 1 by VI है, एक में नीचे की तरफ समेशन 1 by VI और एक में समेशन VI ऊपर है, ओके। तो अगर तुमको समझ आएगा तो कर पाओगे ये वाला, दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट TMS एंड SMS, कैलकुलेट करो तो, प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू। यस मैम। पहले क्या चाहिए हमको, देखो फॉर्मूला में क्या चाहिए था, फॉर्मूला में हमको
v चाहिए था, मतलब स्पीड निकालना पहले, ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। और एसएमएस का भी देखो v चाहिए, मतलब इंडिविजुअल व्हीकल का स्पीड चाहिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना व्हीकल्स का ऑब्जर्वेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। n चाहिए, vi चाहिए। तो ये नोट डाउन करो पहले फॉर्मूला। तो पहले कैलकुलेट करो v, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्पीड निकालो, फर्स्ट व्हीकल v1 कितना होगा निकालो, तो फीट यस पर मैम कर सेकेंड में, फीट पर सेकेंड में निकालो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, यू नो द डिस्टेंस, यू नो द टाइम, यस मैम मतलब व्हीकल 1 में कहो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगा, देन व्हाट इज द स्पीड, देखो 55.6 आएगा, ठीक है। 1000 by 20 50.50, 1000 by 20 to 45.45, मतलब दिस इज v1 v2 v3 v4 v5 v6। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6 है, n is 6, okay, and this is the formula of TMS and SMS. So calculate TMS and SMS. कितना आएगा TMS और SMS, यस मैम कर रहे करो करो। ठीक है, तुमको तो ये डाटा हमने दे ही दिया, अब कलेक्ट करो, कैलकुलेट करो सिंपल। TMS इज समेशन, सब इसका एवरेज, कुछ नहीं, TMS इज इन सब का एवरेज, राइट। देखो एवरेज के लिए क्या करना है, टोटल करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज योर 6, जितना नंबर ऑफ व्हीकल उतना ऑब्जर्वेशन, राइट। तो टोटल डिवाइडेड बाय 6 विल गिव TMS। SMS का थोड़ा फॉर्मूला अलग सा है, राइट। यस मैम नीचे 1 by vi का समेशन होगा, TMS तो बोलो, TMS तो इजी है, उतना टाइम तो नहीं लगेगा TMS का। तो TMS का 50.616 आ रहा है फीट पर सेकेंड। यस मैम Yes, ma'am. 50.6 ठीक है, और SMS का भी निकाल लो। SMS का कैसे निकालोगे, SMS का n, ये है तुम्हारा n, राइट। तो n विल बी 6, ओके, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 by vi, मतलब 1 by v1 प्लस, सॉरी 1 by v2 प्लस, करते करते जाओ, कहाँ तक जाओगे, 1 by v6 तक जाओगे, राइट। ऐसे ऐसे ऐड करते करते 1 by v3 प्लस 1 by v4 1 by v5 करते करते 1 by v6 तक जाओगे, ठीक है। तो 1 by 55.6 प्लस 1 by 50 into 3 plus 1 by 45.5 plus 1 by 52.6. Oh, answer 50.43 आ रहा है। ये होगा 1 by 55.6, 1 by 50 plus 1 by 45.5 plus 1 by 52.6, 1 by 50 plus 1 by 50, 50.43 आ रहा है, देखो तो कि गलत है। हाँ की लिखो कि नाम आबिर, व्हाट आर, हाँ वेरी गुड 50.43। ओ आबिर आंसर দিচ্ছে মেরে, यस यस 50.43 আমারও ওটা এসেছে, বাকিদের
50.4। ठीक है, अब इससे भी तुम लोग को एमसीक्यू आ सकता है कि योर एसएमएस विल बी ऑलवेज लेसर। एसएमएस हमेशा मतलब ये जो स्पेस मीन स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है, इट विल बी ऑलवेज लोअर देन द टीएमएस। ओके, यस मैम। ये याद रखना है एमसीक्यू में। देखो एसएमएस कितना आ रहा है 50.4 और टीएमएस आ रहा है 50.6। जनरली तुम्हारा एसएमएस विल बी ऑलवेज लेसर देन टीएमएस। ओके ओके मैम। ओके देन आज के लिए इतना ही करेंगे, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके मैम। ओके देन, ठीक है देन, थैंक यू। एनी डाउट? थैंक यू। नो मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम।